Close your eyes. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu मा विद्वेषावहै ओम शांति 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 योगेन चित्तस्य पादेन वाचं मालं शरीरस्य चावेदकेन चोपाकरोत्तं प्रबोरं मुनीनं पतञ्जलिं प्राणजलिरान तस्मै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Grab your palms. When it's little warm, gently attach your elbow. And gently open your eyes. अच्छा, कल हम लोग जो भी चर्चा किए हैं उसके ऊपर किसी के कुछ क्वेश्चन? ओके, देन विल मूव टू नेक्स्ट, पतंजलि योगा और राज योगा. व्हाट इज पतंजलि योगा? Raj Yoga means royal or kingly yoga. It is supposed climax of all different paths of yoga. In fact, Swatmarama in his Hatha Yoga Pradipika says, Hatha Yoga is a staircase leading to Raj Yoga. Raj Yoga here may not refer to a particular form of yoga, but to the ultimate state of self-realization. Thanks to Swami Vivekananda, Raj Yoga came to be understood as a yoga propounded by Maharishi Patanjali in his Yoga Sutra. Patanjali's yoga is mind-oriented and meditation is the highest practice therein. In Maharishi Patanjali's word, it is Tadadrashtu Sarupevasthanam. Raj Yoga or Ashtanga Yoga of Patanjali aims at restraining to the point of cessation of mental modification so that real self within is restored to its pristine purity. Raj Yoga is also called Ashtanga Yoga, referring to the 8 limbs that lead to absolute mental control. The chief practice of Raj Yoga is meditation. मतलब पतंजलि योगा और राज योगा बोथ आर सेम. पतंजलि योग में क्या है कि कैसे कोई एक व्यक्ति अपना मन को नियंत्रण कर पाए, उसका रास्ता उसमें बताया हुआ है. जैसे वो हम लोग जानते हैं, दैट इज अष्टांग योगा, दैट इज द अल्टीमेट पाथ, दैट इज द अल्टीमेट पाथ. Ashtanga yoga, he said. Ashtanga yoga is a yama, niyama, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana and samadhi. That will discuss in detail later on. ठीक है, बाद में वो पूरा डिस्कस करेंगे. इसीलिए इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ उसके बारे में प्राइमरीली it is written. Okay. Then Hatha Yoga. Yes, Punam कुछ पूछ रहे थे. सर मतलब कि राज योगा में
जो अष्टांग योगा और मेडिटेशन, मतलब कि दो, मतलब सारी चीजें मिली हुई हैं, उसको राजयोग बोलते हैं। मेडिटेशन का अल्टीमेट क्या है, दैट इज इन राज योगा। वैसे मेडिटेशन कैसे करेंगे, दैट इज वो उसका रास्ता लिखा हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, एंड समाधि इज द अल्टीमेट ध्यान। ठीक है, मतलब सर अष्टांग योगा के अंदर आसन वगैरह आते हैं, क्रिया वगैरह आती हैं? नहीं, क्रिया वो हठ योग में आते हैं, अभी वो अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिया उसमें आता है, इसमें सिर्फ आसन आता है, मतलब बॉडी को फिट करना है, बॉडी को फिट करके मेडिटेट करना है। एकदम एकदम। ठीक है सर। देन हठ योगा, व्हाट इज हठ योगा? Hatha yoga is sourced from Tantra. It is from the yoga which more physically oriented. Most Hatha yoga system begin with purification practice, Sodhana Kriya or Sat Kriya, as against Patanjali's Ashtanga yoga, which begins with yamas and niyamas. There are several texts of Hatha yoga like Swatmarama's Hatha Pradipika, Hatha Yoga Pradipika, Sage Girindas, Girinda Samhita, Gurukha Samhita, Guruksana, Shiva Samhita, Hatha Ratnavali, Yoga Taravali, etc. The word Hatha Yoga, Hatha in Sanskrit combination of the word Ha, sun, and Tha, moons, which in itself is a union of opposite. Qualities associated with the sun are heat, masculinity, and effort, while moon qualities are coolness, femininity, and surrender. Hatha Yoga is designated to help us bring prayers of opposite together in our heart, mind, and body for the purpose of discovering something deeper about the nature of our existence. That is the Hatha Yoga. Find a place. Yes. স্যার এটা কি সূর্য নমস্কার ওটা হতে যাবে? नहीं, हठ योगा मीन्स बोला जा रहा है सूर्य और चंद्र, जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज कॉल्ड चंद्र नारी एंड राइट नॉस्ट्रिल इज कॉल्ड सूर्य नारी। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड राइट नॉस्ट्रिल इन दोनों का मिलन ही हठ योग है। ठीक है, जो इसमें बोल सकते हैं जैसे ऑपोजिट जो एनर्जी है उन दोनों का मिलन ही अल्टीमेट है हठ योग। ऑपोजिट एनर्जी, दैट इन दोनों का मिलन ही हठ योग है। যদি বলে হোয়াট ইজ হাত যোগ তাহলে ওটার মানে ঠিকঠাক অ্যান্সার তাহলে কোনটা? वही सूर्य और चंद्र का मिलन ही हठ योग है। हॉ एंड ठॉ इन दोनों का मिलन ही हठ योग है। আচ্ছা But Hatha Yoga works. That is, find a place in the middle. The middle place. अच्छा, पूनम कुछ पूछ रहे थे। सर ये प्रदीपिका का मतलब क्या होता है? प्रदीपिका मतलब जैसे ये दिया होते हैं ना, दिया को प्रदीप बोलते हैं। सो प्रदीपिका, हठ योगा प्रदीपिका मतलब जो हठ योग का वो उजाला देते हैं, दैट इज हठ योगा प्रदीपिका। हठ योग तो के बारे में जिसका जो नॉलेज देते हैं, प्रदीप। सर ये कोई ग्रंथ है जैसे, और ठीक है, मतलब बुक है जिससे हमें पता चलता है हठ योग का नियम और वो, तो सर जो प्राणायाम यहाँ है पे वो भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो, स्वात्माराम का है हठ योगा प्रदीपिका, सेज घिरंडस घिरंड संहिता, गोरख संहिता गोरखनाथ, शिव संहिता, योग रत्नावली, योग तारावली, ये सारा ही है योग, हठ योग का बुक। ओके सर। और सर हठ योगा के अंदर ही क्या प्राणायाम आता है? क्योंकि लेफ्ट नोस्ट्रियल और उसमें जैसे हम एकदम वो करते हैं खोलना और वो करना। एकदम जैसे हठ योग में ही प्राणायाम के बारे में चर्चा किया गया है, मतलब कैसे प्राणायाम अभ्यास किया जाता है। महर्षि पतंजलि उनका योग दर्शन में प्राणायाम क्या है उसके बारे में वो चर्चा किए हैं। दैट इज तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेद प्राणायाम। लेकिन एग्जैक्टली प्राणायाम
का अभ्यास क्या है, दैट इज इन हठ योगा। चाहे वो सूर्य भेदम हो, उज्जयी हो, उसमें 8 कुंभक या हठ योग में ही प्रैक्टिस के बारे में बताया हुआ है, और उनका लिमिटेशन, बेनिफिट, हर कुछ। तो Okay. सर जैसे कि अभी जैसे हमारा टेस्ट प्रैक्टिकल जो भी हम करते हैं उसमें हम ज्यादातर तो मतलब यही हठ योग ही कर रहे हैं। हाँ, हठ योग का ही, हठ योग में ही प्रैक्टिस लिखा हुआ है, मतलब सर। कैसे प्रैक्टिस करना है। वो पतंजलि योग सूत्र में प्रैक्टिस कैसे करना है वो नहीं लिखा हुआ है। जी सर, हठ योग जो ये राइटर्स है और इनके जो बुक है उसमें ये सब बताया गया कैसे नियम शट मतलब क्रिया कैसे करना है, फिर हमें योग कैसे करना है, किसका क्या बेनिफिट है, वो सब लिखा हुआ है। एकदम एकदम। ठीक है। देन we'll move to next. Acha, find a place in the middle. This middle place is gateway into a whole new world for most of us. It is a place where we discover wonderful new things about our abilities and possibilities for our lives. The term hatha is wrongly understood as subordinates or persisting beyond one's limit. In Hatha Yoga, the term Hatha is symbolically used. The Hatha Pratipika says, Thakarana Surya Thakara Chandra Chandra Suchaka Chandra Surya Simo Bhute Hatha Yoga Vidhiyati। मतलब हौकार और हौकार से सूर्य को, ठौकार से चंद्र को, और चंद्र और सूर्य इन दोनों का मिलन ही हठ योग कहलाते हैं। The term hatha is the union of 2 letters, that is Ho and Tha. Here Ho means sun and Tha means moon. Pingala Nadi represent the sun or Surya's swar, and Ira Nadi the moon or Chandaswar. Hatha means the yoga to bring balance between the sun and moon, or Pingala and Ira in us. With this union, the Kundalini, which is Lantine state, would be awakened, and through the Susumna, it starts upward journey. It crosses all the Satchakra while heading towards Sahasra. There is unites with Brahma in Brahmarandra, the whole of Brahma, and stay forever there in the world of bliss. The इसमें ही मेनली जो बताया गया है, दैट इज चंद्र और सूर्य का मिलन, और कहाँ पे होगा वो, इन बिटवीन आईब्रो, वहां पे ही इनका मिलन हो सकता है। और अगर वहां पे उनका मिलन होता है, सो दे कुड एबल टू stay in blissful state of mind. Then, yes, Poonam. सर जो मतलब चक्र के बारे में इसमें बताया गया है, षट चक्र में तो सर कई जगह बोलते हैं 6 चक्र है, कई जगह बोलते हैं 7 चक्र हैं। तो सर कितने चक्र हैं? शरीर में 6 है और से बहुत सारा चक्र है, लेकिन जो मेन चक्र है दैट इज, बोल सकते हैं वही मेन है 7। 6 जो शरीर में है, और 7 नंबर जो है दैट इज इन आवर क्राउन। ठीक है, टिप ऑफ आवर हेड, दैट इज क्राउन चक्र। तो सर ये जो पिंगला पिंगला मीन्स सर लेफ्ट या राइट? राइट।
राइट, और सर ईड़ा लेफ्ट। लेफ्ट। तो सर जैसे इंगला और ईड़ा नाड़ी को बोलते हैं, अगर हम वो करते हैं, जागृत करते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो सर उसको तो बोलते हैं कि सुषुम्ना, नेवर। सुषुम्ना अलग है, सुषुम्ना है इन बिटवीन आवर स्पाइन। ओके सर, स्पाइन। तो सर स्पाइन का जो सुषुम्ना नाड़ी जब वो जागृत होती है तो मतलब मेडिटेट, मतलब वो ध्यान में जाते हैं कि सर मतलब समझ नहीं आया कि ये क्राउन वाला या वो। अगर कोई ध्यान करते हैं तो जी ही सर। उनका ये चक्र जागृत हो सकता है। तो सर कौन सा चक्र जब जागृत होता है तब, मतलब अल्टीमेट मेडिटेट जैसे पहले के वो करते थे ऋषि मुनि। अच्छा, और एक बार, जो सर मेडिटेट करते थे दैट इज वो अपना चक्र के ऊपर ध्यान करते थे, और चक्र का जागरण जब होता था, चक्र मीन्स दैट इज पावर पॉइंट, वो जब पावर पॉइंट वो जागृत होते हैं तब वहां से बिजली की तरह वो कुंडली शक्ति ऊपर की तरफ वो प्रबुद्ध होते हैं। ठीक। और जब ऊपर जाते हैं तब जाके वो ब्लिसफुल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वो फील होता है, और दैट इज डिवाइन ब्लिस और डिवाइन एनलाइटमेंट, जो हर एक योग का वही अल्टीमेट उद्देश्य है। चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो राज योग हो, हर एक का अल्टीमेट उद्देश्य वही है, कुंडली शक्ति का जागरण। जहाँ पे हठ योग डायरेक्टली बोलते हैं कि चलो डायरेक्टली जाके इस कुंडली शक्ति का यही जागरण के लिए काम करते हैं। जी सर। वो सर जैसे शरीर के ऊपर पहले फोकस करते हैं, शरीर को तैयार करते हैं प्राणायाम मुद्रा बंधा के द्वारा, फिर वो चक्र को जागरण करते हैं और उसमें कुंडली शक्ति का। ठीक है सर। आप और सर जैसे बताया गया ना कि गौतम बुद्ध को भी एनलाइटमेंट मिला था, तो सर उनको उन्होंने तो शायद ज्ञान उनको मिला था, ज्ञान के योग से वो उनका एनलाइटमेंट हुआ था। एकदम ऐसे ही, जैसे देखो ये अल्टीमेट जगह में जाके सब लोग मिलके एक हो जाते हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे आदि शंकराचार्य हो, सभी ज्ञान योग कर्म योगी और राज योगी सभी एक साथ सभी को बोल सकते हैं। ठीक है, एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड द सेम गोल कि कुंडली शक्ति का जागरण। ठीक। Therefore, the state of union called yoga validate a Hatha yoga. The aim of Hatha yoga is to control body and mind. This is because without strengthening and making the body and mind healthy, no spiritual endeavor gets accomplished. Yes? Please, Smita. सर पिंगला मीन्स राइट बोला ना आपने? Yes. तो वही है सूर्य और चंद्र, इसके बारे में हम लोग फिर बाद में फिर इन डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू योगा प्रैक्टिस फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छा, ये पढ़ने से पहले हम लोग एक बार वो अष्टांग योग पढ़ेंगे 2.8। एक बार खोल देना है, पेज नंबर 50, अष्टांग योगा। अभी जो अष्टांग योगा सुन रहे थे ना राजयोग में, वही अष्टांग योग हम लोग योगिक प्रैक्टिस ऑफ पतंजलि योगा, बहिरंगन अंतरंग योगा। योगिक प्रैक्टिस है सब पतंजलि योगा, बहिरंगन अंतरंग योगा। अष्टांग योगा क्या है? दैट इज पतंजलि in his yoga sutra chapter 2 श्लोक नंबर 29 he have written that is yama niyama asana pranayama pratyah dharana dhyana samadhina अष्टवंगानी। मतलब 8 है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यह धारणा ध्यान एंड समाधि। फर्स्ट 5 है बहिरंग योगा, मतलब दैट इज द बहिरंग, बाहर का वो अभ्यास है।
उस बाहर का अभ्यास क्या है? फर्स्ट है यमा। व्हाट इज यम? यम वो है जो कोई एक व्यक्ति अगर वो उसमें वो रहते हैं, अगर वो पालन नहीं करते हैं तो मैसेंजर ऑफ डेथ मतलब यमराज आएगा और उसको पकड़ के लेके जाएगा। Yamas refers to the observances and resistance that regulates our interaction with others. Hence, they take care of our social acquisition. The 5 yamas given by Patanjali are as follows. वो 5 यम क्या है? अहिंसा, non-violence in thought, words and deed. Satya, truthfulness. Asteya, non-stealing of material as well as not material things. Brahmacharya, in a very narrow context, this is understood as a celibacy or sexual abstinence. However, it can understood moderation in sensual and sexual pleasure. Etymologically, it refers to work on the path of truth. Acha. And aparigraha is non-possessive or non-ordering. Acha, ahimsa. नॉन वायलेंस तो बोल ही देते हैं, लेकिन नॉन वायलेंस कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पे बोला गया थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड। हिंसा कितने प्रकार का होते हैं? एनीवन? नेहा बोल सकते हैं हिंसा कितने प्रकार का? अंकिता? सर मतलब हम हिंसा किसी को फिजिकली कर सकते हैं, किसी को अपने शब्दों के, अपने बोल के भी कर सकते हैं, कई बार किसी को ना बोल के भी कर सकते हैं सर, किसी को नीचा दिखा के ना बोल के भी हम दिखा देते हैं। मतलब आजकल डिफरेंट वेज है किसी से वो हिंसा करने का, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और वर्बली। ओके, डेफिनेटली यू ऑल आर इन राइट वे। दैट इज यहाँ पे जो बोला गया कि अहिंसा मतलब 3 प्रकार से, थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड। थॉट्स मतलब चिंता से भी हिंसा नहीं करना है। कैसे? जैसे कोई एक व्यक्ति वो अगर उनका थॉट से वो कैसे हिंसा नहीं कर सकते हैं? जस्ट लाइक इफ यू आर इन, जैसे कोई एक मॉस्किटो उस शरीर में बैठा है तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ से मार देते हैं, ठीक है? तो ये अगर नहीं मारते हैं तो हम लोग फिजिकल हिंसा नहीं करते हैं। एक मॉस्किटो बैठ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि अच्छा इसको मारेंगे, ठीक है? तो मन ही मन में अगर सोचते हैं तो भी वो है मानसिक हिंसा। एंड बाची हिंसा, जैसे पूजा का वहां पे देखो मॉस्किटो नेट बैट है ना पीछे, तो अगर बोलते हैं अच्छा उससे 2 मॉस्किटो है, तुम 2 मार दो, तो हम कुछ किए नहीं, मे बी सी हैव डन, बट वो हो गया बाचिक हिंसा, क्योंकि शब्द के द्वारा वो हिंसा फैल रहा है। तो इन तीनों प्रकार हिंसा से दूर रहना ही अहिंसा है। ठीक है सोमिता? यस। ठीक है, नहीं है, आपके सामने जाकर समझना पड़ेगा। नहीं ये तो अभी तो बोल ही रहे हैं, और क्या। सर ये कलयुग में पॉसिबल है? क्यों नहीं? क्योंकि आप नहीं करना चाहते पर आपके आसपास के लोग sarcastically और ऐसा वर्ड थ्रो करके, मीन्स कहीं ना कहीं देखिए कोई तो ब्रह्मा नहीं है कि उसको बुरा नहीं लगेगा या फिर उसको दुख नहीं होगा, उसको तकलीफ नहीं होगा। देखो सोचो, अगर दुख अगर लगता है तो किसको लगता है? मुझे ही लगेगा ना। तो मैं अगर दुखी होऊंगा तो वो दूसरे वाला का क्या? उसका तो कुछ है नहीं, वो तो दुखी करने के लिए ही रेडी है। आपको कुछ बोल दिया और आप दुखी हो गए, तो दुख किसका हुआ? खुद का हुआ। उनका कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा। अगर मैं गुस्सा होता हूँ, मेरा दुख होता है, तो नुकसान मेरा ही शरीर में है, मेरा ही मन में है। जितना टाइम हम जी रहे हैं इस दुनिया में, उतना टाइम हम दुख में जी रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए।
लेकिन सर भगवत गीता में ही श्री कृष्ण ये बोले हैं कि अगर जो अहिंसा कर रहा है वो पापी है, और जो अहिंसा, उसको पता है सामने वाला कि ये मेरे ऊपर अहिंसा कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी मेरा गलती है। तो इस वे को आप क्या बोलेंगे? एक अच्छा सोचो, अभी मॉस्किटो को लेके हम बात किए, यही सोचो एक मॉस्किटो बैठते हैं तो उनको हम मारने के लिए ऐसे चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सोचो वहां पे एक टाइगर है, अगर वो तुमको ऐसे देखा कि वो टाइगर मेरे तरफ भागते हुए आ रहा है, तो व्हाट यू विल डू? आई विल रन। तो एक मॉस्किटो जब आ रहे हैं तब वही ज्ञान होना चाहिए कि आई शुड रन। नो, टाइगर तो हमें खा जाएंगे ना, इसलिए हम रन करते। मॉस्किटो तो ब्लड जब लेते हैं तो हमको दर्द होता है, इसलिए हम उसको, वो छोटे हैं ना, इसलिए हम मार देते हैं। और नहीं, टाइगर ऐसे नहीं सोचो कि एक मॉस्किटो इज ए फीमेल, ठीक है? सो इफ शी इज टेकिंग ब्लड फ्रॉम यू, तो यू आर हेल्पिंग ए फीमेल, ठीक है? आप जानते हो क्यों मॉस्किटो ब्लड लेते हैं? फीड चिल्ड्रन। तो दूसरे मॉस्किटो जन्म लेंगे। टू प्रोड्यूस, मतलब देयर, क्या बोलते हैं उसको, एग, मतलब वो एग को प्रोड्यूस करने के लिए वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनका काम आते हैं, अदरवाइज दैट एग विल नॉट फर्टिलाइज प्रॉपरली, इसलिए मॉस्किटो को नहीं मारेंगे तो डेंगू मलेरिया हो जाएंगे, नहीं और नहीं टाइगर देखकर नहीं भागेंगे तो देखो, उसका डिनर या फिर ब्रेकफास्ट हो जाएंगे। नहीं देखो, अगर सोचो कि मॉस्किटो मारना ही अगर अल्टीमेट उद्देश्य रहता, तो देश का प्रधानमंत्री या तो प्रदेश का मुख्यमंत्री ये ऐलान कर देते कि आप अगर देशभक्त हो, सच्चे देशभक्त हो, तो एवरीडे 10-10 मॉस्किटो मारो। बोलते हैं कोई? हम्म? इतना सारा तो, नहीं हाँ सर, ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि इसका अगर जो कृष्ण बोले कि अगर कोई सामने वाला अहिंसा कर रहा है तो वो गुनहगार है, और जो अहिंसा सह रहा है वो भी गुनहगार है, तो उस सिचुएशन में सामने वाले को क्या करना चाहिए? इसमें बोला कि गया है, अहिंसा सहना चाहिए? नहीं, वो तो अहिंसा नहीं, उसके लिए बोला गया है पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रकार का व्यक्ति होता है, ठीक है? एक है सुखी व्यक्ति, एक है दुखी व्यक्ति, एक है पुण्यात्मा और एक है पापात्मा और दुष्ट व्यक्ति। जो सुखी व्यक्ति है उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए, जो दुखी व्यक्ति है उनके साथ करुणा का भाव रहना चाहिए, जो रेस्पेक्टेड है उनके प्रति रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए, और जो वीक पर्सन है या पापात्मा है उनको उपेक्षा करना चाहिए। बस, अगर कोई तुमको देख रहे हैं कि वो गलत है, तो अपना जो कर्तव्य कर्म है उसी के अनुसार काम करना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा मुझे अच्छा नहीं लगा, एक्स या वाई को जाके 2 थप्पड़ मार दिए, या आप मार सकते हो? नहीं। सो देयर इज ए लॉ एंड ऑर्डर इन दिस कंट्री, और कहीं पे भी रहते हैं वो अगर कुछ गुनाह करते हैं तो उनके लिए जो प्रॉपर जगह है वहां पे जाके हम उनके अगेंस्ट में क्या बोलते हैं, शिकायत करेंगे। ये सुन नो, बस हो गया, then everything will be settled. স্যার হিংসা কত রকমের বললেন? 3 রকম, বলুন না একবার, বাচিক, মানসিক। শুনতে পাচ্ছি না, ক্র্যাক কায়িক, করছে। বাচিক, মানসিক। কায়িক? Kaik means physically, Bachik means verbally, and Mansik means mentally. Then इसीलिए एक मॉस्किटो की भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है नेहा? सत्य, that is truthfulness. सर हमसे कभी मरता भी नहीं है, हम ट्राई भी करते तो भी नहीं मरता। नहीं, ट्राई भी नहीं करना है, मन में भी नहीं सोचना। Then सत्य is truthfulness. What is truth? देखो, इसमें ट्रूथ क्या है इसके बारे में पतंजलि ने बोला कि प्रमाण क्या है, दैट इज 3 है प्रमाण। प्रत्यक्षानुमान आगमः प्रमाणनी, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम है, 3 है प्रमाण। और ये 3 प्रमाण
के द्वारा जो जस्टिफाइड होता है वही है सत्य। नथिंग इज ट्रूथ अपार्ट फ्रॉम दैट। यस पूनम। सर जैसे ये टॉपिक जिसमें हम पढ़ रहे हैं ये बहिरंग मतलब बाहर के अंगों का अभ्यास। यस, बाहर का अंग मतलब जैसे जो कोई भी एक व्यक्ति अहिंसा का अभ्यास कर रहे हैं तो बाहर से देख के उनको पता लग सकता है। कोई सत्य का पालन कर रहा है उसको देख के पता लग सकता है, इसलिए ये बहिरंग है। मतलब बहिरंग मतलब वो देख के उसकी पर्सनालिटी। नहीं नहीं नहीं, जैसे कोई अहिंसा अच्छा। पालन कर रहे हैं तो कोई मॉस्किटो आ रहे हैं तो आप उसको ऐसे भगा रहे हो, कोई बुरा बात बोल रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हैं ठीक है आप ही सही हो, आई एम द रॉन्ग, देन यू आर लिविंग दैट प्लेस। मतलब आप सही मतलब सात्विक जीवन जी रहे हो, दैट इज। में जो आउटसाइड वर्ल्ड में हो रहा है सर। हाँ, आउटसाइड वर्ल्ड में, वो इनर वर्ल्ड में नहीं। तो आउटर वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति देख के उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके यू आर प्रैक्टिसिंग अहिंसा, यू आर प्रैक्टिसिंग सत्य, ऑलवेज सच बात बोलना। दैट इज सत्य। ठीक। देन अस्तेय, नॉन स्टीलिंग ऑफ मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल थिंग्स। चोरी ये भी कैसे करते हैं, ये भी 3 प्रकार से होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। फिजिकल चोरी, जब कोई हाथ से हम लोग खुद चुराते हैं, दैट इज फिजिकल। पाचिक, वर्बली, हम खुद चोरी नहीं करते हैं, हम अगर बोलते हैं अच्छा ठीक है जोईता वहां पे एक लीची है प्रियस्मिता का घर में, अब तोड़ के लेके आओ, एक तुम्हारा और एक मेरा, तो वो पाचिक चोरी हो गई। एंड मानसिक, वहां से जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं अच्छा अगर कोई नहीं रहता तो हम एक लीची जरूर तोड़ के खाते, तो दैट इज मानसिक चोरी। इन तीनों प्रकार चोरी से दूर रहना ही अस्तेय है। ठीक है, इन तीनों प्रकार चोरी से दूर रहना ही अस्तेय है। सर लेकिन इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है नॉन स्टीलिंग ऑफ मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल थिंग। हाँ वही तो बोल रहे हैं हम। तो नॉन मटेरियल थिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग। हाँ, जैसे किसी का आइडिया चोरी करना वो भी तो चोरी हो गया। ओके। ठीक है, दैट इज नॉन मटेरियल थिंग्स। तो सर इतना डीपली ये क्वेश्चंस आता है ना कि अस्त्या के अंदर में कितना नहीं, डिवीजन होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आते। सर एक सैंपल पेपर चाहिए जिससे आइडिया हो कि कैसे सब मिल जाएगा, प्रिपेयर सब मिल करना जाएगा, है। सब मिल जाएगा। ठीक। उसके लिए ओके भी सर। हम कल भी बोल रहे थे ना कि कर्म के ऊपर अधिकार है, कर्म फल में नहीं। मतलब हम लोग पढ़ाई के ऊपर अधिकार है, रिजल्ट तो जो होगा तो ऑटोमेटिक होगा। सर हमको गूगल लिंक नहीं मिला, मैंने कॉल किया था आज, वो क्लासरूम का लिंक। पूनम के पास है तो पूनम भेज देना उनको, ठीक है, पूनम भेज देगी तुमको। ओके थैंक यू सर। हाँ। देन ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को जो चारण करते हैं मतलब सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। हम्म। सर जैसे नेहा क्वेश्चन पेपर मांग रही है तो जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा क्वेश्चन पेपर में क्या है हमें भी नहीं पल्ले पड़ना है। हाँ नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, पहले ये पढ़ लो, यही उसमें रहेगा, इसके बाहर कहाँ से क्या आएगा। अगर बाहर है भी तो भी तब डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं करना। नहीं हमको ये जानना था ना सर कि कितना डीपली घुस के पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, अभी जो पढ़ाई हो रहा है ये एवरीडे का पढ़ाई एवरीडे हो जाना चाहिए, तब जाके कोई बर्डन नहीं होगा। और नहीं पढ़ते हैं तो कुछ दिन बाद जाके देखना आ रहे हम तो समुंदर के क्योंकि मतलब हम लोग ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है ना सर, हम लोग रट्टा बहुत मारते हैं इसीलिए। रट्टा मारने का ये सब्जेक्ट है ही नहीं। सर सीखने का है, अभी हम सीख रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है हमें, हम ज्ञान ले रहे हैं। एकदम वही ज्ञान में डूब जाना है।
तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म को जो चारण करते हैं, या तो इंद्रिय का जो नियंत्रण करते हैं, या सेलिबेसी कोमर्य उनको जो धारण करते हैं, वही है ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह मीन्स अजाचित रूप से कोई भी दान नहीं लेना। अजाचित रूप से मतलब if any of your friend, if he or she is giving you anything, don't take that things. क्यों? क्योंकि देखना, जैसे जब स्कूल में था तब ये ऐसा होता ही था कि जो अच्छा लड़का है या कोई भी फ्रेंड अगर है तुम्हारा, तो देखना वो एग्जाम के पहले मतलब पूरा साल शायद he or she have given you some chocolate or some comfort, और जब जाके तुम्हारा जब एग्जामिनेशन होगा उसमें जाके वो या तो कुछ वो कंफर्ट भी वो तुमसे मांगेंगे, जो वो देंगे और वो जो मांगेंगे वो बहुत ज्यादा बड़ा चीज हो जाएगा। इसलिए किसी के पास से कुछ मतलब गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। Whereas from your home also, if your brother or sister, if he or she is giving you something, तो सोचना इनका पीछे इनका कोई प्लान है, होता है ना? तो सर हम लोग अगर बर्थडे पे जो गिफ्ट देते हैं वो किसी के घर जाके देते हैं, वो विजिट करते हैं किसी के घर, देखो वो ये प्लान करके देते हैं, वो कितना रुपए का प्लेट देगा उसी रूप से उसका गिफ्ट तैयार होते हैं, ठीक है? ऐसा सवाल सर, अगर कोई मिडिल क्लास रहेगा और कोई रिच के घर पे जा रहा है तो वो अपना बजट काट के तो नहीं देगा, उसका जितना नहीं, लिमिट होगा वो उतना का ही देगा। आप सोचो कि आप बहुत रिच हो, आप अगर किसी का एकदम सिंपल किसी का घर में जाओगे ना, तो भी आप वही रूप से आप उनको गिफ्ट दोगे जो उनका लेवल का होगा, ठीक है? आई हैव सीन दैट थिंग्स ऑल्सो। जैसे कोई एक ही जगह पे दोनों मतलब दो एम्प्लॉय था, एक जैसे मैं पूरा पिछला जो ऑफिस में था, तो एक एम्प्लॉय का शादी हुआ था, हम लोग सब गए थे। जो कंपनी का ओनर था वो लगभग 2 या 2.5 लाख रुपया का एक गिफ्ट उनके लिए लेके गए थे। फिर उसी मतलब एक डाउनग्रेड कोई एक एम्प्लॉय था, उनका शादी में वो सर गए थे या मैडम गए थे, वो लोग लेके गए थे, तो वो उनका जो मतलब प्राइस है ऑफ दैट गिफ्ट, दैट इज नॉट मोर देन 20,000, ठीक है? दोनों मोटा मोटी एक ही कैटेगरी का था, ठीक है? लेकिन एक है पूरा कंप्लीट वो मैनेजर थे, ठीक है? और एक था जो एकदम मतलब वो कॉमन फैमिली से थे। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना है, एंड दैट इज अपरिग्रह। इसीलिए कोई गिफ्ट दे भी रहा है, इसीलिए देखना अभी बहुत सारा हो गया कि कोई अनुष्ठान में बोल देते हैं डोंट ब्रिंग एनी गिफ्ट। सो ऐसा नॉन पॉजिटिवनेस तो होना ही चाहिए जीवन में, तब जाके आप का मन शांत होगा। ऐसा किसी ने देखा, किसी का शादी हुआ है और शादी में क्या गिफ्ट मिला है उसको लेके झमेला, होता है कि नहीं होता है? वो तो गिफ्ट ही है। बाकी लोग में तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ना सबसे मेरे गंदा काम मेरे को ये लगता है ना कि जो गिफ्ट आता है एक जन बैठ के वो लिखता है कॉपी में, वाई क्यों लिखना है, मेरा जितना बजट होगा हम उसके वेडिंग में देंगे, क्यों लिखना है? वो रखेगा 20 साल 25 साल बाद फिर निकालेगा तुम्हारा। हमको यही डर्टी लगता है सर कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वो अपना बजट के हिसाब से दिया है, वो आपको क्यों लिखना है? और सब ओपन करके भी देखते हैं, अच्छा एनवलप में इतना है तो इतना लिखते हैं। तो दैट्स द थिंग, ये ऑलवेज ये जो गिफ्ट होता है ये गिव एंड टेक पॉलिसी होता है, यू डू दिस आई विल डू दैट, तो ये नहीं होना चाहिए। ये अगर होगा तो हम लोग विल गो टू द हेल, मतलब वो जीवन नरक में चला जाएगा। इसीलिए अयाचित रूप से किसी का भी दान नहीं लेना है।
Then niyamas. Niyamas refer to observances and resistance which governs an individual's personal life. Therefore, they can be said to govern the personal acquisition. These niyamas are as follows. That is, Socha means physical and mental purity or hygiene. साफ सुथरा रहना, शरीर से मतलब सामान्य रूप से साफ सुथरा रहना, शरीर से एवं मन से. Then santosha, containment, an ever present happy state of mind. मतलब संतुष्ट होके रहना है, जहां पे भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, उसमें आनंद में रहना. That is santosha. Tapa is austerities, penances और vows. मतलब तप करना है, किसी भी रूप से काम करना है और एक लगान के साथ काम करना चाहिए. जैसे कोई एग्जामिनेशन है, अभी जैसे एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन है, पढ़ाई है, तो उसको करना होगा, मन को लगाते भी ही करेंगे. दैट इज कॉल्ड तप. स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, और उसको क्या सेल्फ स्टडी है? दिस में कंप्रेस study of scripture, following the guru's decades, listening to discourses of saints or wise people, satsang, company of truth or like-minded people. मतलब स्व अध्याय, जो पढ़ाई करने से अपना नॉलेज डेवलप होगा और जिसमें हम खुद को जान पाएंगे, दैट इज द स्वाध्याय. एंड ईश्वर परिधान, दैट इज complete surrender to Ishvara. That is complete surrender to Ishvara. जब भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पण, तो कोई भी काम करेंगे उसको भगवान को समर्पित करके करना है. That is, this all five are niyamas. उसके बाद आते हैं asanas. What is asana? Patanjali devoted only 3 sutras for asanas out of his 195 sutras. He defines asana as a sthir sukhamasana. Asana is a posture which is stable and comfortable. Obviously, Patanjali's emphasis is on asana which should be stable and comfortable for carrying on meditation undisturbed for a decades period of time. In regard methodology of doing asanas, Patanjali says, Prayatna Kshetrananta Samapatibhyam, means when you are practicing that asana, you need to surrender it to Ishvara. In the performance of asana, effort have to be progressively reduced and mind should be attuned to the concept of infinity. मतलब भगवान पे समर्पित होना चाहिए. In other words, asana performance should be graceful and mind should be concentrated. As regard the effect of asana, Patanjali says, Tatah dandana abhighata, means from that asana there is no assimilate from conflicts. मतलब कोई द्वंद्व का आघात नहीं लगेगा, मतलब सुख दुख ऐसा कोई feelings और रहेगा ही नहीं. In other words, the effect of asanas according to Patanjali is mental in nature, that is freedom from all kind of conflict. और वो है जितने प्रकार का conflict है उससे दूर होना. Then pranayama. What is pranayama? Yes, Punam. सर जैसे आसन में बताया गया है कि मतलब कंफर्टेबली हम लोग उसको कैरी करते हैं और फिर मेडिटेट करते हैं. एकदम मतलब जैसे पद्मासन की है, पद्मासन में मतलब एफर्टलेस करना है, मतलब जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसमें कोई बहुत जोर करके जोर पूर्वक अभ्यास नहीं करना है, ठीक है. और उसको भगवान सर जैसे कोई
कोई कोई आसन है जैसे धनुरासन है, तो हम्म, उसमें आपको एक प्रॉपर पोस्चर में आना है, तभी मतलब बोलते हैं ना उस बॉडी पार्ट को, उसको चीज को हम जागृत करते हैं, वहां कंसंट्रेट करते हैं। तो सर बॉडी को वहां पे आसन में बॉडी को कंसंट्रेट करना है या मन को वहां से हटा के परमात्मा से जोड़ना है? पहले तो कंसंट्रेट करना है, देन तब जाके डिफोकस में आएगा, तब जाके जब बहुत दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इजी हो रहा है, तब जाके धीरे धीरे मन को हम लोग भगवान की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट दिन करके और वो तदादृश सर्पवस्थानम या तो वो मतलब ये नहीं होगा। क्योंकि सर अभी तो जो हम योगा आसन कर रहे हैं उसमें तो हम एकदम अनस्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबल तो होते ही नहीं है, हम अनकंफर्टेबल जोन में जाके अपने बॉडी को पुश करते हैं कि वो वैसा पोस्चर आए। एकदम नहीं, पुश तो करना है, लेकिन मन को यही रखना है कि अच्छा ये स्ट्रेस आ रहा है, बट इट इज ओके, बट माय माइंड शुड बी इन दैट स्टेट कि जहाँ पे एकदम शांत स्वभाव का मुझे होना पड़ेगा। मतलब इसमें भी जितना भी कष्ट हो रहा है वो भगवान के ऊपर संप्रदान करते हुए मुझे खुश रहना है, ठीक है। देन प्राणायाम, द orientation of pranayama in Patanjali is more towards inhalation and exhalation rather towards retention is done in Hatha Yoga. प्राणायाम पतंजलि के अनुसार दैट इज तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, मतलब जैसे नॉर्मल हम लोग सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसका गति का विच्छेद घटाते हुए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। लेकिन इसमें रिटेंशन मतलब कुंभ के बारे में उतना ज्यादा एम्फसाइज मतलब इतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया। Patanjali says pranayama happens when there is a break in the peace between inhalation and exhalation. Accordingly, he talks about 4 types of pranayama: modification of inhalation, modification of exhalation, stoppage of breath, and modification, and the 4th which transcend the subject matter of inhalation and exhalation. मतलब 4 प्रकार का प्राणायाम है, दैट इज बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति एंड चतुर्थ। और ये 4 प्राणायाम मतलब 4 प्रकार से कोई एक व्यक्ति प्राणायाम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, प्राणायाम प्रैक्टिस मेक्स द माइंड फिट फॉर धारणा। ऑल्सो प्राणायाम प्रैक्टिस सोड of impurities covering the spark of reality in us dismisses gradually to the point of disappearance. The pranayam का ultimate है that is बोलते हैं ततक्षीयते प्रकाश वर्णम, ततक्षीयते प्रकाश वर्णम, जब प्रकाश का आवरण उन्मोचित हो जाता है। That is pranayama's ultimate benefit. Yes, Poonam. सर जैसे इसमें बताया है कि 4 प्राणायाम के मतलब मॉडिफिकेशन है। पहला है कि इनहेल करना है, मॉडिफिकेट कैसे हम इनहेल करते हैं, है ना, सांस को किस हिसाब से लेते हैं, और सेकंड है कि एक्सेल कैसे करते हैं। फिर सर ये बताया कि स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ एज द मॉडिफिकेशन, मतलब क्या रोकना भी है? एकदम, दैट इज स्तंभ वृत्ति, मतलब सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, कहीं एक जगह पे रोक देना, दैट इज যেটা হোল্ড করি, মানে যখন সকালে করান যে লক করে হোল্ড করলাম সেই জিনিসটা। नो नो नो, दैट इज डिफरेंट। हम लोग प्राणायाम चैप्टर में उसको लेके डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज डिटेल में नहीं चर्चा करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्राणायाम का कितना मॉडिफिकेशन है, पतंजलि ने क्या बोला, हठ योग में क्या है। आज हम लोग ओवरऑल पर राय कर रहे हैं। हाँ, देन प्रत्याहार। What is pratyahar? Pratyahar refers to the withdrawal of sense organs from their respective objects, like the tortoise withdrawing its limbs into the safety of its shell. Pratyahar forms the bridge between the first 4 limbs, Bahiranga Yoga, and the last 3 limbs, Antaranga Yoga. In other words, Pratyahara marks the transition of the mind from its extrovertness to inward going process. प्रत्याहार क्या है?
जो शरीर का बाहर से अंदर की तरफ हो जाने का जो रास्ता है, दैट इज प्रत्याहार. Then we'll move to अंतरंग योगा. एंड प्रत्याहार ही है जो ब्रिज बन के काम करते हैं अंतरंगन बहिरंग. अंतरंग योगा ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज धारणा, ध्यान एंड समाधि. धारणा का डेफिनेशन है देह से बंध चित्त से धारणा. इसको सिंपल वे में इसको जैसे एक एप्पल को एक टेबल के ऊपर रख दिए तो उनको हम देख रहे हैं, दैट इज धारणा. देह से बंध चित्त से धारणा. कोई भी एक जगह पे मन को अगर स्थिर करते हैं, दैट इज कॉल्ड धारणा. ध्यान क्या है? तत्र प्रत्यय का तानता ध्यान, और निरंतर रूप से उसी को देखते हुए रहना, दैट इज कॉल्ड ध्यान. मतलब जब वो एप्पल और मैं जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो दोनों एक ही प्रवाह में चल रहे हैं, दोनों कोई अलग नहीं है, ऐसा महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड ध्यान. एंड समाधि refers to spiritual absorption, that is तदेवार्थ मात्र निर्वासम सर्व सुन्नमित समाधि. जब वो ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते मैं और नहीं हूं, सिर्फ वो एप्पल ही रह जाता है, दैट इज कॉल्ड समाधि. স্যার ধ্যানটা আরেকবার বলুন। ध्यान मतलब जैसे वो एप्पल को जब निरंतर रूप से, मतलब एक सिर्फ उसकी तरफ ही हम देखते हुए हैं, बैठे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ध्यान. और समाधि मैं नहीं हूं, सिर्फ वो एप्पल ही है, दैट इज कॉल्ड समाधि. सर्व शून्य में अपना स्वरूप शून्य हो गया, दैट इज समाधि. यस नेहा. सर जैसे वो कैंडल, बहुत लोग कैंडल जला के अपना वो ध्यान, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक एक्सरसाइज करने के लिए वो कैंडल जला के एक टक सिर्फ उसको देखते हैं. हाँ, तो वो भी तो ध्यान के अंदर ही आया ना, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए. नहीं, दैट इज त्राटका इज ए क्लींजिंग प्रोसेस. हम लोग अब पढ़ेंगे. क्लींजिंग प्रोसेस मतलब ये आंखों को साफ करने का एक प्रक्रिया है. Okay. Trataka is not a meditation. Trataka is a cleansing process. सर कब होगा ये? सर वो त्राटका वो करवाते हैं ना, जैसे अंगूठे को यहाँ से देखना है, यहाँ तक लेके जाना है. हाँ, That is Jatra Trataka. यात्रा त्राटका. ज्योति त्राटक देखते हैं, कभी एक दिन अभ्यास करेंगे, लेकिन सभी को कैंडल जला के रखना होगा. ठीक है, एक दिन बोल देंगे, एक दिन याद कर लेना, ट्यूसडे या तो थर्सडे हम लोग अभ्यास कर लेंगे. तो यही है अंतरंग योगा. धारणा, ध्यान, समाधि. Okay, the 3 angas, dharana, dhyana, samadhi, together comprise meditation. In Patanjali Yoga, when they happen together, it refers to Sayyama. By Patanjali, it is the Sayyam which leads to various siddhis or vibhutis. In Patanjali Yoga Sutra, the practice of Ashtanga Yoga, according to Patanjali, when done with favor and determination, leads to the diminution of impurities, to the extent disappearance, the illumination of knowledge developed, to the point of vivekhyati, enlightened discrimination between Purusha and Prakriti. That is the ultimate of knowledge of Antaranga Yoga. ओके, ये 2.8 पेज नंबर 50 ये एक बार पढ़ लेना है, एंड टुमारो अगेन विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. एनी क्वेश्चन शॉर्टली? জয়িতা, পেশমিতা. স্যার বলছি যে মানে অনেক সময় কি হচ্ছে, আমি এগুলো বেঙ্গলি ভার্সনে যখন পড়ছি আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, কিন্তু যখন ইংলিশে পড়তে যাচ্ছি তখন অনেক প্রবলেম হচ্ছে. তো এক্সামের জন্য কি মানে আপনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন বেঙ্গলিতে বললেও হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওভারঅল কি বুঝেছি মানে সেটা হচ্ছে কথা. বাংলাতে বললেও হবে, কোনো অসুবিধা নেই. হ্যাঁ, কিন্তু এমসিকিউর জন্য তো আমাকে ইংলিশটা এমসিকিউ এর মনে জন্য হয় করতে হবে. বোঝানোর কিছু নেই, ইংরেজিতে থাকবে, ইংরেজিতে অপশন থাকবে তোমার. হ্যাঁ, তো হ্যাঁ ওইগুলো তো তাহলে আমাকে ইংলিশ.
উত্তর হচ্ছে ABCD। ঠিক আছে? হ্যাঁ সেইটা, কিন্তু তার জন্য তো আমাকে মানে ইংলিশটা পড়তে হবে নাকি, মানে এরকম খুঁটিয়ে? অসুবিধা নেই এখন না, কিছু অনেক অনেক এখন কিছু দেখছি এখন যে MCQ ইংলিশে। সম্বন্ধে ভেবো না। আজকে যেটা পড়া হলো এটুকু বুঝতে পারছো কিনা সেটুকু দেখো। হ্যাঁ, আমি যদি যদি বাংলাটা নিয়ে বসে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, একটা ইংলিশেই সমস্যা হচ্ছে। বাংলা নিয়েই পড়ো। ঠিক আছে, তাহলে তো অসুবিধা নেই। যে ইংলিশে আসতে গেলেই দেখছি ওখানে অনেক কম, এখানে অনেক বেশি, যেটা বেশি সেটাই প্রবলেম। বেশি সেটা প্রবলেম নয়। এই দেখো মোবাইল নেবে, গুগল লেন্স খুলবে, ট্রান্সলেট করে নেবে, ঠিক আছে, যে দেখবে যে কতটুকু বেশি আছে। হ্যাঁ, গুগল লেন্সে ট্রান্সলেট করা যায়, জানো তো? যেহেতু হ্যাঁ, ব্যাস তাহলে ওটা পরে দেখবে কতটুকু বেশি আছে, কি এক্সট্রা লেখা আছে, ব্যাস হয়ে গেল। ভাগ আছে এক একটা। সে যাই থাক, একটু বেশি থাকলে অসুবিধে কি, ক্ষতি কি আছে? এটা একটু দেখে নেবে। ওকে দেবস্মিতা। सर ये जो लास्ट स्टैंजा है ना, द हाँ। प्रैक्टिस ऑफ अष्टांग योगा according to Patanjali when done with fervor and determination, knowledge enlightened discrimination between पुरुषा and प्रकृति, इसका मतलब समझ में नहीं आया। पुरुष इज, हाँ जैसे योग दर्शन आया, दिस इज ए पैरेलल फिलोसॉफी ऑफ सांख्य। सांख्य में बोला गया है प्रकृति एंड पुरुष के बारे में। तो वही प्रकृति एंड पुरुष के बारे में अल्टीमेट नॉलेज होता है जब कोई योगी बनते हैं। ठीक है, प्रकृति क्या है, ये जगत संसार कैसे तैयार हुआ है, एंड पुरुष इज, दैट इज जो करता ज्ञाता एंड भोक्ता है, हु इज नोअर डूअर एंड हु इज एंजॉयर। तो वो जब वो कर्ता ज्ञाता एंड भोक्ता, उनके बारे में अल्टीमेट जब नॉलेज प्राप्त होता है, तभी जाके हम लोग जान पाते हैं कि हु एम आई। क्योंकि अल्टीमेट का उद्देश्य यही है कि मैं कौन हूँ, ये तो अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि हु एम आई, इसका ही सोल्यूशन। ओके सर। ठीक है, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, टुमारो अगेन वी जॉइन बैक द सेम टाइम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Have you fun? When it's little warm, gently attach your ball and take your own time to open your eyes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Good night.